Good morning, class. In our today's Excel class, we will study formatting a range of cells with decimal places. We will start from this, then we will study the charts. What are the different types of charts available in Excel? How we can insert chart and how we can make changes in the chart. So let's start with first formatting a range of cells with decimal places. In last class, we studied formatting the worksheet, formatting cell contents, changing font formatting, formatting alignment of a cell range. So let's see how we can format a range of cell, means group of cells with the decimal places. Here I have already entered some values. You can see the difference. Just a sec. In this, the decimal places below one another, and in this decimal places are not organized. So we will learn how we can select multiple range of cells to organize the decimal places. So first of all, we have to select the cells, then number tab of the format cell dialog box. So this is home tab, then here the number, then you will see the category. Here you will see format cell dialog box. This is the format cell dialog box, and it we will get in home tab, number group. Okay, when you will click on this small arrow, this format cell dialog box will get opened, and in this you will see different tabs: number, alignment, font, border, fill, protection. So in the number, there are many categories. You can see number, currency, accounting, date, time, percentage, fraction, scientific, text, special, custom. So in this you will select number category. Okay, and also you can use this 1000 separator. The 1000 values will be separated by each other with the help of a comma. Then you will press OK. Now you can see ये कॉमा यहाँ पे आ गया क्योंकि हमने सेपरेटर यूज़ किया था, और ये जो परसेंटेज है ये ऑर्गेनाइज्ड हो गए. मीन्स आफ्टर दिस point only two values are there. Okay, so in this way we can format the cell with the decimal places. After this, displaying number in scientific notation, same. Select the cells, then number. इसी में आप अलग अलग कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि नंबर्स के आगे करेंसी का सिंबल बन के आ जाए, कोई भी करेंसी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, कोई भी करेंसी का सिंबल बन के आ जाए, तो आप इसको यूज़ करेंगे. फिर डेट के लिए अगर आप डेट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे. देन टाइम, अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इन सबके लास्ट में परसेंटेज लग जाए, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर साइंटिफिक यूज़ करना है. साइंटिफिक में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है उसको E+N से वो रिप्लेस कर देता है. मीन्स ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाता है. देख लेते हैं इसको. मैथ में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं. तो ये E+N की वैल्यू से इसको रिप्लेस कर देता है. E प्लस बाकी की सारी वैल्यूज़ जितना रहा होगा, तो ये 03, 03, 02 ऐसे लास्ट में सबको ला दे रहा है. नेक्स्ट इज, इसमें करेंसी मैंने बताया, करेंसी कैसे यूज़ करेंगे. अब देखते हैं कि डेट टाइम कैसे फॉर्मेट चेंज करेंगे. जैसे हियर आई हैव मेंशन्ड अ डेट ऑलरेडी, 2/1/2005 मीन्स second is the date, 1 is the month, and 2005 is the year. So let's see how we can change its format. Number, date. Now for example we want this format, Wednesday. We will click on this. Now the result is here, Tuesday, February 1, 2005. ठीक है, आप कोई और भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे. इसमें ईयर नहीं है तो यहाँ पर भी ईयर नहीं शो होगा. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग रेंज ऑफ सेल टू बी सीन एज लेबल. ये भी यहीं से होगा. यू कैन सी डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट. ओके, दिस इज टेक्स्ट.
ठीक है। तो ये सब आप कोई भी टाइप ऑफ कंटेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा। आफ्टर दिस नेक्स्ट हेडिंग इज वी हैव क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS एक्सेल। तो सबसे पहले वी विल सी कि कितने तरीके के चार्ट MS एक्सेल में होते हैं। ये है चार्ट, कहाँ पे, इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब, चार्ट ग्रुप, फिर इस एरो पर क्लिक किया तो ढेर सारे चार्ट ओपन हो गए। अब कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, इसके बाद ये स्टॉक सरफेस, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कैसे इंसर्ट करते हैं, इसके बाद उसका क्या क्या कंपोनेंट है वो पढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। सपोज यू वांट टू ऐड दीज वैल्यूज ऑन द चार्ट। इसमें से आप कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वी आर सेलेक्टिंग दिस चार्ट। ओके, ये वैल्यूज इस चार्ट पर रिप्रेजेंट हो गई। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि और कितने तरीके के चार्ट होते हैं। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकंड। सो फर्स्ट काइंड ऑफ चार्ट इज कॉलम चार्ट। वो ये कुछ इस तरीके से होता है, वर्टिकल बार्स होते हैं। सो अ कॉलम चार्ट शोज डेटा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज आइडियल व्हेन यू वांट टू कंपेयर डेटा आइटम्स फ्रॉम अ सिंगल कैटेगरी ऑफ डेटा। कैटेगरीज आर शोन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वैल्यूज अलोंग द वाई एक्सिस। इसमें वाई एक्सिस कौन सा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ये है वाई एक्सिस और ये नीचे है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कॉलम चार्ट क्या करता है कि ये जो डेटा में कंपैरिजन दिखाता है, इट डिस्प्लेज द कंपैरिजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज बार चार्ट। सो इसकी तरफ बार चार्ट भी क्या करता है, ये है बार चार्ट। बार चार्ट जैसे कॉलम चार्ट क्या था, वर्टिकल था। बार चार्ट क्या है, इसमें बार्स है पर ये हॉरिजेंटल है। सो लाइक अ कॉलम चार्ट, अ बार चार्ट ऑल्सो शोज कंपैरिजन among individual items. However, in a bar chart, categories are shown along the y-axis and values along the x-axis. कॉलम चार्ट में क्या होता था, कैटेगरीज x-axis पे होती थी और वैल्यू y-axis पे होती थी। पर बार चार्ट में क्या, इसका उल्टा है, कैटेगरीज y-axis पे हैं एंड वैल्यूज़ किस पे हैं, x-axis पे। नीचे ये क्या है, x-axis है। आपने ग्राफ पढ़ा होगा मैथ्स में, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ऐसे वर्टिकल है तो क्या है वो, वाई एक्सिस है। आफ्टर दिस वी हैव इज लाइन चार्ट। These are the various type of line chart. So it shows how data changes over a period of time. जैसे कोरोना का ग्राफ नहीं आप देखते हैं कि पहले इतना बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, तो वो कौन सा चार्ट होता है, लाइन चार्ट, जो इस तरीके से कुछ बनता है। एक टाइम पीरियड में कैलकुलेट करता है कि चीज़ें कितनी चेंज हुई, कैसे बढ़ा घटा, इस तरीके से। ईच डेटा आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डॉट कॉल्ड अ डेटा मार्कर। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, डेटा मार्कर। मीन्स इसमें जो डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो इस डॉट को बोलते हैं डेटा मार्कर। नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज पाई चार्ट। सो पाई चार्ट, ये सर्किल वाला जो है, ये सर्किल वाला क्या है, पाई चार्ट है। पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन और प्रपोर्शन ऑफ ईच डेटा आइटम ओवर अ टोटल वैल्यू। दिस चार्ट इज यूज फॉर शोइंग डेटा फ्रॉम वन डेटा सीरीज ओनली। मतलब एक डेटा सीरीज के डेटा को ये डिस्प्ले करता है कि टोटल में से कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ कितना एरिया कवर करता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि टोटल सर्किल में ये ब्लू वाला एरिया ने इतना कवर कर रखा है, बाकी इस कलर में है, इस तरीके से ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक, नेक्स्ट इज ओके दिस
डोनट चार्ट, डोनट क्या है, एक खाने वाली चीज़ होती है, उसमें सर्किल होता है और बीच में होल होता है। सो ऐसे ही डोनट चार्ट में भी है, ये सर्कुलर है और बीच में होल है। पाई चार्ट में बीच में होल नहीं था। सो अ डोनट चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू अ होल। इट इज़ लाइक अ पाई चार्ट बट कैन प्लॉट मोर देन वन डेटा सीरीज। पाई चार्ट में हम एक ही डेटा सीरीज प्लॉट करते थे, ठीक है, लेकिन डोनट चार्ट में क्या है, एक से ज़्यादा डेटा सीरीज़ हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे ये एक सर्कल है तो ये एक डेटा सीरीज़ को शो कर रहा है, अब इसी के बाहर एक और सर्कल बन जाएगा, दूसरी डेटा सीरीज़, उसी के बाहर एक और बन जाएगा। इस तरीके से जितनी डेटा सीरीज़ होंगी वो सर्कल बढ़ता घटता जाएगा। सो ये भी सर्कुलर होता है, इसमें आप याद रखिए कि इसमें बीच में स्पेस होता है, उसमें स्पेस नहीं होता है। उसमें हम एक ही डेटा सीरीज़ प्लॉट कर सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एरिया चार्ट। This is area chart. So an area chart shows the magnitude of change in data over a period of time. It is similar to the line chart except that the area below the plotted line is filled to indicate magnitude. area chart भी line chart की तरीके से ही होता है, बस डिफरेंस क्या है, जैसे इसमें भी आप देखिए, you will see कि पहले इतना घटा, फिर ये बढ़ा, फिर घटा, फिर पीछे ये बढ़ा, ये आपको दिख रहा है, मीन्स आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि लाइन चार्ट में ये जो नीचे का एरिया ये फिल्ड नहीं होता, इसमें भी पॉइंट्स हैं, यू कैन सी, बढ़ा, इधर घटा, फिर इधर बढ़ा, ये एरिया फिल्ड नहीं होता है। लेकिन एरिया चार्ट में क्या होता है, एरिया चार्ट में क्या होता है कि ये पूरा फिल होता है, ठीक है। तो हमने अभी कौन कौन से चार्ट टाइप पढ़े, कॉलम, बार, लाइन, पाई, डोनट, एरिया। तो इट मीन्स 6 टाइप्स ऑफ चार्ट, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। तो सबसे पहले होता है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल कहाँ होता है, अगर हमने इस पे कोई टाइटल यहाँ ऊपर डाली होती है लाइक स्टूडेंट्स मार्क्स, तो वो टाइटल इस चार्ट के ऊपर यहाँ पर शो हो रहा होता, ठीक है। तो चार्ट टाइटल बेसिकली कहाँ होता है, प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द चार्ट। टाइटल है तो वो ऊपर ही होगा। इट हेल्प अ यूज़र टू नो द पर्पज ऑफ द चार्ट। किसी भी टाइटल से आप यही पता करते हैं ना कि वो पर्टिकुलर डायग्राम, चार्ट, बार, टॉपिक किस चीज़ के बारे में है। तो टाइटल से आप ये पता करेंगे कि वो चार्ट किसके बारे में है। नेक्स्ट इज चार्ट एरिया। चार्ट एरिया इज द टोटल रीजन वेयर अ चार्ट एंड इट्स कॉम्पोनेंट आर डिस्प्लेड। या बॉक्स एक अलग से देख रहे हैं ना, ये एक बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये पूरा चार्ट एरिया है। ये पूरा जो बॉक्स रेक्टेंगुलर है ये पूरा चार्ट एरिया है, जिसमें चार्ट से रिलेटेड सारे कंपोनेंट, सारे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज plot area. Plot area is the part of the chart area where your data is actually plotted. The plot area of a chart is bounded by two axes, x-axis and y-axis in a 2D chart, and in a 3D chart the plot area is bound by walls, vertical areas and floor, that is base area. So x-axis और y-axis, ये जो हमारी axes हैं, इनके अंदर का जो एरिया है ये होता है प्लॉट एरिया, क्योंकि हम यहीं पर तो अपना चार्ट प्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस दो होती है चार्ट में, एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस कौन सी होती है, इट इज़ द हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल मतलब पैरेलल टू अर्थ। सो ये जो नीचे वाली बिल्कुल लाइन है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, टोटल मार्क्स, ये जो इसके ऊपर लाइन है ना, ये क्या है, horizontal axis of our chart. It is generally used to display data category and therefore also known as category axis. On this axis हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ्स है, फिर ये साइंस है, एसएसटी है, टोटल मार्क्स, मीन्स यहाँ पर कैटेगरी डिस्प्ले हो रहा है ना। तो ये इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस कहाँ होती है, हॉरिजेंटली होती है, ये नीचे की तरफ। तो एक्स एक्सिस को हम कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पर डेटा की कैटेगरी डिस्प्ले होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई एक्सिस। द वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू अर्थ, ये हुआ वाई एक्सिस। द वाई एक्सिस इज जनरली यूज फॉर शोइंग डेटा वैल्यूज एंड देयरफॉर आल्सो नोन एज वैल्यू एक्सिस। तो वाई एक्सिस को हम और क्या बोलते हैं, वैल्यू एक्सिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो रही ना, ये वैल्यू मतलब कुछ न्यूमरल फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, 0, 50, 100, 150, 200, ये सब क्या है, वैल्यूज़ हैं। इसीलिए हम वाई एक्सिस को और क्या बोलते हैं, वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं। सो एक्स को बोलते हैं कैटेगरी, वाई एक्सिस को बोलते हैं वैल्यू एक्सिस, ठीक है।
Next is axis titles. The axis titles are the titles given to the x and y axis of a 2D chart and the x, y and z axis of a 3D chart. So axis title basically क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर तो कोई टाइटल नहीं है, हम यहाँ पर दे सकते थे मार्क्स या फिर सब्जेक्ट्स, ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स है, तो हम इनका यहाँ पे नीचे मेंशन कर सकते थे कि इसका टाइटल क्या है, सब्जेक्ट, तो वो एक्सिस टाइटल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन कर सकते थे मार्क्स, या अगर ये ईयर्स होता तो हम यहाँ पे 2005, 6, 7 ऐसे लिखते और यहाँ पर लिख देते ईयर्स, तो वो जो लिखते वो क्या होता, एक्सिस टाइटल होता। मीन्स हम बता रहे हैं कि ये जो एक्सिस है वो किसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा सीरीज। अ डेटा सीरीज is a set of values on the worksheet that you want to plot in the form of chart. Each data series is given a unique color or pattern in the chart that makes it easier to distinguish between them visually. सो डेटा सीरीज़ बेसिकली क्या होता है, ये वो वैल्यू होती है, वो सीरीज़ होती है जो आप इस चार्ट पर प्लॉट करना चाहते हैं। हर डेटा सीरीज़ अलग अलग कलर में होती है। एज यू कैन सी, अंकित का कलर कितना है, क्या है, ब्लू, देन मनीष का रेड, देन ग्रीन, देन पर्पल, देन स्काई ब्लू। इस तरीके से हर डेटा सीरीज़ का अपना अपना यूनिक कलर है और हम इन्हीं की वैल्यूज़ को इस चार्ट पर प्लॉट कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इज लीजेंड्स। अ लीजेंड इज अ की दैट आइडेंटिफाइज अ डेटा सीरीज। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ये क्या है, लीजेंड्स हैं, कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना कि ये जो ब्लू कलर है वो किसका है, इसका है, रेड वाला किसका है, इसका है। तो ये लीजेंड्स हैं, दे आर यूज टू आइडेंटिफाई अ डेटा सीरीज। इट डिस्क्राइब्स अ डेटा सीरीज रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर कलर ऑन द चार्ट। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये अगर ग्रीन कलर की हम बात करें तो ये ग्रीन कलर किसके बारे में बता रहा है, दीपक के मार्क्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा लेबल्स। डेटा लेबल इज अ टेक्स्ट और लेबल दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा मार्कर पार्ट ऑफ अ चार्ट दैट शोज पार्टिकुलर डेटा आइटम ऑफ अ सीरीज। अब डेटा लेबल क्या होता है वो यहाँ पर तो नहीं मेंशन है, इसके ऊपर मेंशन होता है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बार है, चार्ट है, इसके ऊपर वैल्यूज मेंशन होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेटा लेबल। इट डिस्प्लेज द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट डेटा। आफ्टर दिस, ग्रिड लाइन्स। द ग्रिड लाइन्स आर द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन ऑन द प्लॉट एरिया। ये जो लाइन्स हैं ये क्या है, ग्रिड लाइन्स हैं। अगर ये वर्टिकल भी होती हैं तो भी वो ग्रिड लाइन्स होती हैं। ये प्लॉट एरिया में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स होती हैं। एंड ग्रिड लाइन्स मेक इट इजी फॉर अ पर्सन टू रीड द चार्ट। आप ग्रिड लाइन की हेल्प से आसानी से पढ़ सकते हैं कि हाँ ये 100 से थोड़ा सा कम है, ये 300 से ज़्यादा है और ये थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा है। तो ये ग्रिड लाइन की हेल्प से हमें चार्ट को रीड करने में आसानी होती है। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, चार्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे और चार्ट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ अब हमने ये चार्ट यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू चेंज द टाइप ऑफ चार्ट, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चार्ट है तो इसमें हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक कर लेंगे, चार्ट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम वापस से जाएंगे इस बटन पर, ये चार्ट ओपन हो गया। सपोज वी वांट टू ऐड this chart, okay, we will select this OK button. Now the chart type is change. If you want any other kind of chart you can also select that. Suppose you want this, now this is also change. ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से इसी बटन पर जाएंगे, टोटल चार्ट टाइप ओपन हो जाएगा, उसमें से कोई भी चार्ट टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे तो चार्ट का टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ हाउ वी कैन ऐड द टाइटल टू दैट चार्ट। यहाँ पर हमारे चार्ट में टाइटल नहीं है, वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमने फिर से इस चार्ट को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद वी विल गो ऑन लेआउट टैब, लेआउट। ठीक है, इन लेआउट टैब वी हैव अ ग्रुप लेबल्स एंड इन दिस वी हैव अ ऑप्शन चार्ट टाइटल। इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया।
ये हो गया हमारा चार्ट टाइटल। ठीक है, तो चार्ट कैसे इंसर्ट करना है, चार्ट का टाइप कैसे चेंज करना है, चार्ट का टाइटल कैसे हमें ऐड करना है, ये हमने सीखा। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन ऐड एक्सिस टाइटल। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये जो जैसे कैटेगरी है तो हम इसका भी टाइटल ऐड कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ का भी हम टाइटल ऐड कर सकते हैं। वो करने के लिए सेम हमें लेआउट टैब पर ही जाना है, एंड इन लेआउट टैब वी आर हैविंग एक्सिस टाइटल। ठीक है, एक्सिस टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस देना चाहते हैं, कहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे, आप एक्सिस का वैल्यू देंगे। फिर वर्टिकल एक्सिस में भी आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कहीं पर भी क्लिक कर कर एक्सिस की वैल्यू या एक्सिस का उसमें टेक्स्ट टाइप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सिस टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। कहाँ, लेआउट टैब, लेबल्स ग्रुप। ठीक है, चार्ट टाइटल, एक्सिस टाइटल, लीजेंड्स। ये जो लीजेंड्स है, ये जो दिख रहे हैं, ये कहाँ पर दिखेंगे, इस तरफ राइट में या टॉप में, लेफ़्ट में, बॉटम में। ठीक है, ओवरले एट राइट, ओवरले एट लेफ़्ट, या फिर दिखे ही ना, ये भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर डेटा लेबल्स है, डेटा लेबल्स दिखे या ना दिखे उसके लिए भी ऑप्शंस है। ठीक है, देन डेटा टेबल शो हो या लीजेंड की के साथ शो हो या फिर ना शो हो, इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर हैं। इसके बाद वी आर हैविंग मोर लेआउट टैब कमांड्स। तो सबसे पहले है कमांड बटन। कमांड बटन, इट हेल्प्स यू टू सेलेक्ट अ पार्टिकुलर चार्ट एलिमेंट, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, कमांड बटन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस चार्ट का कोई पार्टिकुलर एलिमेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी हैव फॉर्मेट सेलेक्शन, इट प्रोड्यूस अ डायलॉग बॉक्स टू अलाउ यू टू फॉर्मेट सेलेक्टेड चार्ट एलिमेंट। जो कमांड बटन की हेल्प से हमने चार्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया था उसको एडिट करने के लिए हम फॉर्मेट सेलेक्शन का यूज़ करते हैं। आफ्टर दिस वी हैव पिक्चर्स। ठीक है, इट अलाउज यू टू इंसर्ट पिक्चर ऑन द चार्ट। देन वी हैव शेप्स। शेप्स अलाउज यू टू इंसर्ट शेप ऑन द चार्ट। ठीक है, वेरियस शेप्स आर देयर. Then we have text box. Through text box we can insert text on the chart. Then chart title, axis title, legends and all. ठीक है, after this we have data labels. Data labels. So data labels provides option to show the actual data values with the data series. Means actual data values of this chart with the data series. After this, data table. This was data labels and this is data table. Through this we can add a data table to our chart. After this we have axis. It gives option to change the formatting and layout of the axis. ठीक है, इससे हम जो एक्सिस है हमारे पास उसकी फॉर्मेटिंग या लेआउट को चेंज कर सकते हैं. देन वी हैव ग्रिड लाइंस. इट हेल्प टू शो और हाइड द ग्रिड लाइंस ऑन द चार्ट. ये जो ग्रिड लाइंस डिस्प्ले हो रही हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन है हमारे चार्ट में, ये शो हो या हम इन्हें हाइड करना चाहते हैं, वो ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ ग्रिड लाइंस में मिलेगा. ठीक है, next is formatting the chart. So we can change the formatting of the individual chart element like chart area, chart title, plot area, legend, data series and so on using the commands or option given in the chart tools in the format tab. Then the general step to format a chart element are as follow. format tab हमने खोला. ठीक है, ये मल्टीपल टूल्स दिए हैं, ग्रुप्स हैं, तो हम इनकी हेल्प से हम अपने चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं. ठीक, ये हो गया शेप स्टाइल. यू विल सी. ओके, इफ़ आई सेलेक्ट दिस यू कैन सी कि ये ब्लू बॉर्डर इसके किनारे आ गया. पर्पल सेलेक्ट किया तो पर्पल बॉर्डर किनारे आ गया. फिर हमने ये सेलेक्ट किया, इसमें से हम और भी ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं. ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद सपोज हमने ये सेलेक्ट किया, आपने देखा कि यह टेक्स्ट चेंज हो गया. ठीक है, यहाँ से भी हम और भी सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक, आप देख रहे हैं कि इसमें चेंजेस हो रहे हैं. और इसके बाद वी हैव मैनी अदर ऑप्शंस. जस्ट अ सेक. ओके,
तो इस तरीके से हम अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, विद दिस हेडिंग वी हैव completed this chapter. You have to study revision time and also try to do the practical of this chapter if possible. Thank you. Have a nice day.